हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं 3D पार्ट मॉडलिंग। और मैं जो सॉफ्टवेयर यूज करने वाला हूँ वो है क्रियो। तो आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम पार्ट्स को बनाते हैं और कैसे जो इसमें स्केच को क्रिएट करते हैं। व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर द क्रिएटिंग द स्केच इन आवर 3D सॉफ्टवेयर। So we will discuss those things in coming 10-15 minutes. Okay. So we'll go to the what is our agenda for the day. So this is the agenda for the day. Basic software, basic software environment of the Creo. Then creating the new sketches and what is the best practice for the creating the new sketch. पार्ट मॉडलिंग, पार्ट को हम कैसे बनाएंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और यूज ऑफ द एक्सट्रूड कमांड एंड रिवॉल्व कमांड। सो दीज आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन कमिंग 10-15 मिनट्स। और हम ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे और पार्ट को कैसे बनाया जाता है। आफ्टर दैट we will go to the complex part, how we are creating some complex parts. So those we will discuss in this our channel. Okay. So I will jump to the Creo. Yes. So dosto, now you can see my screen here. In this, when you are open the Creo window, then it will comes like this. Okay. This is the Creo software screen, this black color. And if you see here the tabs, what are the tabs here? I will just explain briefly. File and then home, and here we have the new and open. These are the tabs are here. और इसके बाद अगर हम फाइल को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमको कुछ और भी यहाँ पे कुछ और टैब्स हमको देखने को मिलते हैं। So this is option tab. In this option tab, you can change your themes. Here you have so many options are there. We will discuss later on these different segments. But one thing I want to show here, system appearance. So if you click this system appearance, you can see the dark theme, and you can choose light theme also. Uh, and you have the default. You can select any one what you like. Okay, so particularly I like this dark theme, so I kept dark theme in my Creo, and I will press OK. So right now this is the environment. Okay, so without wasting time, we will go to the first agenda, how we are creating the sketch in our software in 3D in Creo. Okay, so we will press here the new, because we are going to create new part. So I just pressed here new, and you can see these are the uh, few things are there, few tabs are there, like if you select this layout, sketch, assembly, manufacturing, drawing, so it will go directly on that segment. If you select the assembly, it will go to the assembly segment. If you create the drawing, it will go to the drawing segment. So I this is the file name. I'm just keeping here test01. Okay, and I will press OK button. Now this, if you press the OK, then it will comes like this. We have three plane here, x y z and zx. We have three planes here, these three planes. Okay, so this, what are the use of these planes? I will explain you little bit, because this is the very important things if you are creating the any part modeling. So We'll jump to the PPT slide and we will discuss what are those XYZ plane. Okay. So if you see here, these are X plane
and these are your y plane here, y, and this is our x plane here. If you see, this is your x plane, and z plane is here in 2D. Okay, this is our z. I can mark as a z. This is a more related to the degree of freedom. If you are creating any part, and if it's a part like rectangle, if it's here, so what happened if you're creating the part here, and in assembly its parts directly, if you call as a default part, or you are if you are assembling this part, so it will be moved from this point. This is 0 0. So we need to make sure this all the parts should be in center of this xyz. Okay, so this is more related to degree of freedom. So we are I will show you on the sketch on Creo what I'm trying to explain here. This is the just basic theory, then we'll go to the I will explain while creating the sketch, I will explain these things. Okay, so we will move on to our Creo. So yeah, so now you can see my Creo window. I will create one sketch. If you can see here, this is the extrude command, revolve command, sweep bend. These are the commands. The basic commands are here. So we are utilizing this command for creating our parts. Okay. So I will take the extrude command. We will see today extrude. So I'm selecting here plane because it's asking which placement where you want to create the extrude. एक्चुअली इसका मीन ये है कि आप एक्सट्रूड करना चाहते हो पार्ट, बट कहाँ पे एक्सट्रूड करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, क्योंकि पूरा ये हमारा इन्वायरमेंट मतलब एक एक हमारा ये इसको हम बोल सकते हैं कि ये ओपन स्पेस है और वहां पे हमको पार्ट क्रिएट करना है, तो हम कहाँ पे क्रिएट करें ये हमसे पूछ रहा है। सो हम क्या करते हैं, हम एक यहाँ पे एक प्लेन को सेलेक्ट करते हैं, ऐसे प्लेन को सेलेक्ट किया। अभी ये हम प्लेन सेलेक्ट कर लिया तो इसको मैंने ये बता दिया भाई मेरे को ये प्लेन पे ही ये स्केच बनाना है, ठीक है। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, इस ये एक्टिव हो गया। नाउ व्हाट विल डू, विल जस्ट प्रेस दिस टैब, जस्ट सी दिस टैब, दिस इज द स्केच व्यू। if I press this one then it's come in 2D type of the dimension। ओके, उसको हम प्रेस करेंगे तो ये हमारा प्लेन ऐसा बन जाएगा कि जिसमें हम इजीली जो है पार्ट को बना सकते हैं। तो अभी फॉर एग्जांपल हम क्या देखते हैं कि एक रेक्टेंगल पार्ट देखते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल लिया, मैंने इसको यहाँ पे बना दिया। ओके, यहाँ पे मैंने इसको डायमेंशन दे दिया 500 एंड इसको दे दिया मैंने 200। ओके, नाउ यहाँ पे आता है कॉन्सेप्ट कि स्केच बनाने का बेस्ट प्रैक्टिस क्या हो सकता है। स्केच बनाने का बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हमको मिनिमम डायमेंशन मैं स्केच को दूं और वो हमारा पार्ट बन जाए। सो राइट नाउ इफ यू सी हाउ मेनी डायमेंशन हियर, 1 2 3 4, 4 डायमेंशन वी आर प्रोवाइडिंग फॉर क्रिएटिंग दिस स्केच। though so this is not a correct way, we will remove few dimension, we can remove this 393 203, these dimension we can remove. How we can remove, let's see. So I am selecting this edge, I am selecting this edge, press control and we activate this button constraint. So selecting this one and then selecting this one. Okay, so now what I did, this is activated right now, this key is activated here, coincident, this key activated. So I selected this edge and press control and this edge, so now it's came here. Okay, so we created what one rectangle sketch here. Okay, what
What right now what we need to do here, if you pick this edge and drag, if you are dragging, so it's moving anyhow, correct? So we need to lock this dimension. So I will just press here 500, and then I will lock this dimension. Once again this is 200, and I will lock this dimension. So now if you drag this edge, so it will not move. Okay, so this is the best practice if you are creating the any sketch with the minimum dimension, then it's a good sketch. Okay, now I will press OK, and let's see, this 3D parts are created here. Now I need to provide the thickness. ये पार्ट कितनी थिकनेस का होना चाहिए, या कितना मार्केट में जो हमारा स्टैंडर्ड साइज होता है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे थिकनेस यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं. सो यहाँ पे अगर मैं 5 mm का थिकनेस देता हूँ तो ये 5 mm का हमारा ये पार्ट बन जाता है. ठीक है, और अगर इसको बनाने के भी दो तरीके हैं. जैसे इसको डेप्थ में मैं दो टाइप से दे सकता हूँ. एक तो यहाँ से देखोगे आप, ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है कि एक डायरेक्शन में ये एक्सट्रूड हुआ, एक्सट्रूड एक डायरेक्शन में हुआ, एक डायरेक्शन में ये थिकनेस बढ़ा है. अब इसको हम दोनों डायरेक्शन में कर सकते हैं. ऐसे कर दूंगा तो ये बीच में ये सेंटर हो जाएगा, इसके ये साइड मतलब इसके जेड डायरेक्शन और जेड माइनस और जेड प्लस डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में ये है हमारा पार्ट बन जाएगा. तो इसको बनाने के, इसको एक्सट्रूड करने के हमारे पास दो तरीके हैं. लेटर ऑन we will discuss what are the use of these things. Abhi, for time being, just remember we can provide these things while using these commands. Okay, these two we can use. So this is the basic part creation while using the sketch, one constraint with the full sketch. And मैं इसमें आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ. अभी अगर हम इसको नहीं करते ऐसा तो फिर क्या कर सकते थे. देखो, अभी मैं इसको गया, इसको एडिट किया, ये इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ स्केच को. ओके, इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर दिया. और क्या कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे रेक्टेंगल लिया और ऐसा बनाया, और इसको मैंने यहाँ पे दे दिया 500 mm और इसको दे दिया 200 mm, और इसको भी प्रेस करूंगा तो ये भी पार्ट बन जाएगा. लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो ये इस प्लेन से यहाँ पे है, ये कोऑर्डिनेट से यहाँ पे है. सो दिस इज नॉट द करेक्ट वे. जहां तक हो सकता है पार्ट को हम मिनिमम डायमेंशन और इस कोऑर्डिनेट से अगर हम पार्ट बनाते हैं तो ये हमारा जो है वो परफेक्ट स्केच होता है और ये परफेक्ट हमारा पार्ट बनता है. ओके, और इस केस में क्या होगा कि अगर हमें इसको कोई भी, अगर इसको पार्ट को एडिट करता है इन फ्यूचर, कोई भी एडिट करता है या कुछ इसमें करता है, इसको इजीली मूव कर सकता है. तो ये आपने 500 का बनाया था और बाद में पता चला कि यार ये 800 mm का, 800 समथिंग mm का हो गया. सो कोई भी इसको एडिट कर सकता है. ऐसे एडिट मतलब कि बाय मिस्टेक उसको अगर ड्रैग हुक कर दिए पार्ट को तो उसको पता नहीं चलेगा और पार्ट जो है वो साइज उसका चेंज हो जाएगा. तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको हम लॉक कर देते हैं कि हमने 500 अपन ने बनाया है 500 का, मुझे 500 का ही पार्ट चाहिए. ओके, सो ये दोनों डिफरेंसेस है, कैसे हम पार्ट को परफेक्टली स्केच, कैसे हम कंस्ट्रेंट करें, कैसे उसको बनाएं. So these things we need to consider while creating any sketch. Okay, so हमने अभी लर्न किया एक्सट्रूड और स्केच एक्सट्रूड में कैसे हम बनाते हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी किए. ठीक है, नाउ विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, रिवॉल्व. हाउ वी कैन do the revolve feature here. I will close this one and I will take the new part. So this is the file name. Once again we are doing the same thing here, test 2 and press OK. Then once again similar kind of environment came here.
Now we'll select here revolve command. Okay, then once again if you press the revolve, then it will ask for which plane. So I am selecting this plane and press sketch here, sketch view. Okay, नाउ रिवॉल्व में हम लोग क्या करते हैं, हम एक अभी जस्ट फॉर शोइंग डेमो पर्पस हम यहाँ पे एक सर्किल लेते हैं। हम डायरेक्टली इसको क्रिएट कर सकते हैं। इसको क्रिएट करने के दो तरीके हैं। डायरेक्टली हम ये सर्किल को ये एक्सेस पे भी क्रिएट कर सकते हैं, ये अपने आप भी ले सकता है, लेकिन मैं इसको क्या किया, दूर क्रिएट किया कुछ डिस्टेंस पे, जिससे आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए कि ये एक्चुअली जो स्केच है एक्स डायरेक्शन पे हम इसको कैसे कंस्ट्रेंट कर रहे हैं। सिमिलर वे यहाँ पे हमने क्या किया, कंस्ट्रेंट ये लूंगा, ठीक है, ये टैब को एक्टिवेट किया, इसको सेलेक्ट किया और इसको एक्स डायरेक्शन में इसको एक्स एक्सेस को इसको हमने सेलेक्ट किया, तो ये इस यहाँ पे आ गया। ओके, देन आई विल जस्ट गिव सम डायमेंशन फॉर दिस सर्किल 20, तो मैंने इसको 20 दे दिया। ओके, और सेंटर, ये हमारा सेंटर। रिवॉल्व क्या होता है कि किसी भी एक्स एक्सेस से ही हम उसको रिवॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो हमारा एक्सेस है ये अभी हमने यहाँ पे बनाया नहीं है, इसके लिए हमको एक सेंटर लाइन लेना पड़ेगा और इसको यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा, तभी ये रिवॉल्व होगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक सेंटर लाइन डाल दिया। अभी क्या आगे, ये जो है डायमेंशन मैंने इसको 300 दे दिया। तो सेंटर से ये 300 हमने इसका डायमेंशन दे दिया। मतलब अभी ये जो सर्किल क्रिएट होगा, रिवॉल्व जो क्रिएट होगा, वो उसका डाया जो होगा वो 600 mm का हो जाएगा। तो अब नाउ विल प्रेस ओके। अभी आप देख सकते हो ये हमारा सर्किल क्रिएट हो गया। ओके, देखो 3D मॉडलिंग सीखना डिफिकल्ट इजी है, और एक वन बाय वन स्टेप अगर हम सीखेंगे तभी हम इसको आगे बना सकते हैं पार्ट को। अदरवाइज आप डायरेक्टली डिफिकल्ट पार्ट पे जाओगे, क्रिएट करने जाओगे, और आपको फिर वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट हम बोलते हैं लेकिन एक्चुअली वो बेसिक नहीं होता है, वो रियल में डिफिकल्ट होता है, क्योंकि लोगों को बहुत कम टाइम पे बहुत ज़्यादा सीखना है। ओके, सो फर्स्ट वी नीड टू क्लियर आवर बेसिक्स। कैसे हम पार्ट को बनाते हैं, सिंपल, एक्सट्रूड और रिवॉल्व, यही फीचर हम लोग इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं। ओके, ऐसा कुछ नहीं है कि हम इंडस्ट्री में अलग यूज करते हैं और जस्ट फॉर लर्निंग हम यहाँ पे कुछ दूसरा यूज कर रहे हैं। सो सिमिलर थिंग, चीज़ें बहुत ही सिमिलर हैं, बट हम उसको सीखते कैसे हैं, किस वे में, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ पे मैंने अभी आपको रिवॉल्व फीचर बना के दिखाया। अभी क्या करते हैं, इसको एडिट करते हैं और हम इसको चेंज करते हैं। इसको चेंज भी आप कर सकते हो, जब मैं अपने एक बार पार्ट बनाया तो इसको आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जाके एडिट फंक्शन को यूज करो, उसके बाद यहाँ पे पहले प्लेसमेंट पे क्लिक करो, एडिट को क्लिक करो। ओके, और अभी ये ऐसा है, कुछ 3D में आपको स्केच दिख रहा है जो कि आपको फेवरेबल नहीं, मतलब आपको देखने में थोड़ा सा सही नहीं लगेगा। तो आप क्या करो, इसको स्केच व्यू क्लिक करो, तो ये आपको जो 2D व्यू में आ जाएगा, आपने जैसा पहले स्केच बनाया था वैसे आ गया। यहाँ पे आप क्या करो, इसके डायमेंशंस को चेंज कर दो, 300 की जगह पे आप इसको 500 कर दो। ये आप 20 की जगह पे 20 mm का डाया है, इसको आप जो है 50 mm कर सकते हो, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये 50 mm का और इसका डाया चेंज हो गया, आप इसको चेंज कर सकते हो, इस हिसाब से एडिट कर सकते हो। नाउ वन मोर थिंग, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हम एडिट करते हैं और यहाँ पे कुछ और कमांड है, इसके बारे में हम देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे 360 डिग्री आप इसको रिवॉल्व करना चाहते हो, पूरा 360, तो यहाँ पे हमने 360 एंगल दिया। अगर आप इसको 90 करना चाहते हो तो ये 1/4 ऑफ दिस सर्किल हो जाएगा, ये 1/4 सर्किल पे हमारा एक्सट्रूड हुआ। ओके, 180 करना चाहते हो तो 180 हो जाएगा, 270 करना चाहते हो, किसी भी एंगल पे हम इसको ऐसे रिवॉल्व कर सकते हैं। So these are the basic concept for the extrude and revolve, guys. So make sure without practice आप नहीं सीख सकते, आपको प्रैक्टिस करना है और पार्ट्स को बनाना है। हम लोग धीरे धीरे इस चीज़ों को लर्न करेंगे और
आपका जो भी डाउट है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमको कमेंट करिए कि आपका जो डाउट है, अगर हमको आता है तो हम उसको आंसर देंगे, अदरवाइज आई विल लर्न and I will provide you the best answer for your question. Okay, because this is the learning phase. Together we learn and together we will grow. Thank you guys. Have a nice evening. Okay.